Hello children. In our previous video, what you have studied that the earth rotates from the west to east. Earth rotates from west to east. I am writing here because this is very important to remember that earth rotates from west to east. That is why any place which is to the east of the place where you live will have its sunrise and midday earlier than your place. For example, if you are living in Arunachal Pradesh, you will experience sunrise before the people who are living in Gujarat. Yani your experience of sunrise will be earlier than the people living in Gujarat. Thus, the local time of that place will be ahead of your local time or behind of your local time. Similarly, any place which is to the west of your town will have its sunrise and midday later than your town. So it means when one place is to the east of another, it is ahead of the other in town, and a place west of another is behind the other in time. So it means such type of variation will create difficulty if all the countries would adopt different local times. So now we will not talk about countries, we will talk about our country. So first of all, as you have read about GMT in your previous टॉपिक कि 0 डिग्री इज़ द GMT जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम एज इट इज़ passing from a place situated in London, and that place is Greenwich, and we have drawn a line. That line is 0 degree, and this is Greenwich mean time. And from Greenwich, with an interval of 15 degrees, there are 24 time zones. 24 time zones with an interval of 15 degree. यानी 0 to 15 degree one meridian is there, 0 to 15 degree one meridian, 15 to 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree. So in this way there are 24 meridians which are selected at time zones. यानी इन meridians के basis पर किसी भी country में time को calculate किया जाता है. तो time को कैसे calculate किया जाता है? तो we will see about India कि how in India time is decided. तो here you can see the location of India. वर्ल्ड में तुम अगर इंडिया के लोकेशन को देखोगे तो वर्ल्ड में इंडिया का जो लोकेशन है इट इज़ ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ 60 डिग्री है, हियर 60 डिग्री और 68 डिग्री, फ्रॉम 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू ऑलमोस्ट 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंडिया इज सिचुएटेड. 68 से लेकर के ऑलमोस्ट 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक इंडिया जो है वो सिचुएटेड है. यानी 68 से लेकर के 97 तक इंडिया में टोटल 29 मेरिडियंस है. तो इट मीन्स कि अब इंडिया जो है इन 29 मेरिडियंस में से कौन से मेरिडियन को अपना स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर करता है. So first of all, one question arises that why we are giving so much emphasis in deciding standard time. So we are giving so much emphasis in deciding standard time of a place. Standard time वैसे होता क्या है? तो standard time हम लोग क्या करते हैं कि we decide to adopt the local time of a central meridian of a country as the standard time of India. हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी मेरिडियंस हैं उनमें से किसी एक मेरिडियन को, देखो ये हमारे कंट्री को हम लोगों ने अलग कर लिया, ये इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को दिखा रहा है. अभी हम बता रहे थे कि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 68 डिग्री से लेकर के इट इज़ सिचुएटेड इन 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड. यानी बिहाइंड दिस फ्रॉम 0 डिग्री टू 67 डिग्री, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है. तो 0 डिग्री से जब हम लोग 67 डिग्री में आते हैं तो इंडिया स्टार्ट होता है, और जब हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पहुंचते हैं तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड हो जाता है. तो इंडिया में अगर हम लोग हर एक मेरिडियन को लेंगे, क्योंकि
as I told you so many times that earth is rotating from west to east. So it means that these places are in east and these places are in west. So it means places which are receiving sunlight, those places which are situated in the east are receiving sunrise much before than places which are locating in the west. यानी ईस्ट वाले को सनराइज पहले एक्सपीरियंस कर रहे हैं ईस्ट वाले लोग, और वेस्ट वाले लोग जो है सनराइज को बाद में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो व्हाट इट मीन हियर? इट मीन कि इफ every meridian of every state, means कि if you take an example of on different states or northeastern states, so what you will see कि here these meridians, if these meridians will be decided as the, यानी कि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश या असम है या फिर नागालैंड है, त्रिपुरा है, एज दे आर सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ सनराइज चूँकि ये लोग पहले एक्सपीरियंस करेंगे, तो अगर ये लोग अपने घड़ी को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्योंकि देखो अगर वो इस मेरिडियन को सेलेक्ट कर लेते हैं एज देयर लोकल टाइम, तो इनका जो टाइमिंग होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर 6 AM है, तो सन जो है यहाँ पर, तो सनराइज़ गुजरात में सनराइज़ तो बहुत बाद में होने वाली है, तो यहाँ 6 AM है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी 4:30 ही हो रहा है, यानी यहाँ 4:30 AM है, तो यहाँ पर 6 AM हो जाएगा. तो अगर कोई पर्सन है वो अगर यहाँ से फ़्लाइट पकड़ता है और उसे गुजरात में जाना है, तो ही और सी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग हिज वॉच, और इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रन और एडजस्ट अवर ट्रेन टाइमिंग, अवर फ्लाइट टाइमिंग, तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी. क्योंकि हर मेरिडियन में हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 4 minutes, 0 degree to 1 meridian 4 minute, again from 1 to 2 4 minute, या 0 डिग्री से 15 डिग्री अगर कोई जाता है तो इट विल बी डिफरेंस ऑफ 1 hour. तो इट मीन्स विथ एवरी मेरिडियन देयर इज अ टाइम डिफरेंस. तो दीज डिफरेंसेज विल क्रिएट लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन मेंटेनिंग आवर फ्लाइट टाइमिंग, आवर ट्रेन टाइमिंग. तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in our country, and in order to avoid this problem means avoid which problem is to maintain uniformity, to manage the timing of train and flight all over the country. It was decided to adopt the local time of a central meridian of a country as the standard time of India. Local time of a central meridian of a country as the standard time of India. It means कि हमें क्या करना है, वी नीड टू चूज़ एनी वन मेरिडियन, दीज आर मेरिडियंस, है ना. मेरिडियन हम लोग किसे कहते हैं, विच इज़ रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो दीज आर द मेरिडियंस. तो अब हम लोग जो इनमें से किसी भी एक मेरिडियन को चूज़ करेंगे जो कि लोकल टाइम, किसी एक मेरिडियन को चूज़ करेंगे जो कि वो उस जगह का वो लोकल टाइम है, लेकिन वो पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा. तो हम लोग कौन से मेरिडियन को चूज़ करें? तो हमारे कार्टोग्राफर्स ने सारे एक्सटेंट को देखा, इंडिया के नॉर्दर्न एक्सटेंट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट टू ईस्टर्न एक्सटेंट है, ये हमारा नॉर्थ से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा साउदर्न एक्सटेंट है. तो फाइनली हमारे कार्टोग्राफर्स ने चूज़ किया, देखो यहाँ हियर इट इज़ 80 डिग्री ईस्ट, तो हमारे कार्टोग्राफर्स ने 82 डिग्री ईस्ट को उन्होंने चुना. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को उन्होंने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया. दिस इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ चोज़न एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया. और ये कहाँ से पास होता है? तो देखो मेरी लाइन तो बहुत सीधी नहीं है, तो इट इज़ पासिंग फ्रॉम मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद के पास ये जो जगह है, इलाहाबाद के पास ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये क्रॉस हो रहा है. दिस इज़ द लोकल टाइम ऑफ
उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का ये लोकल टाइम है। मिर्ज़ापुर इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड मिर्ज़ापुर's लोकेशन क्या है, तो इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट, इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से द लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट longitude is selected as the standard meridian of India. It is selected as the standard meridian of India. It is not crossing from Lucknow. ये इलाहाबाद के पास से क्रॉस करता है। और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो इट इज़ कवरिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। यू कैन सी अ कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ पासिंग फ्रॉम, इस उत्तर प्रदेश में तो है ही मिर्ज़ापुर। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो क्रॉस कर रही है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ क्रॉसिंग। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज़ लोकेटेड नियर मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, इज़ कंसिडर्ड एज द Indian Standard Time, which is IST. It is Indian Standard Time. And what is its distance from 0 degree? Means कि from the prime meridian, what is its distance from prime meridian? तो ये है prime meridian. This is prime meridian. This is prime meridian. And in 82 degree Indian Standard Time is selected, 82 degree 30 minute east is selected as the Indian Standard Time. तो it means कि this is the distance of 5.5 hour. This is the distance of 5.5 hour. यानी अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बजता है तो +5.5 hour, what will be the time in Indian Standard Time? You will write in the comment section कि if it is 12 in prime meridian, then what will be the time in मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश विच इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी इंडिया के घड़ी में कितनी बजेगी अगर हम लोगों के प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि 0 डिग्री इज़ द प्राइम मेरिडियन। एज वी विल मूव टुवर्ड्स द ईस्ट there will be addition, as we will move behind west, we will move behind the prime meridian, there will be subtraction. तो due to this it is very important to manage our watch। और अगर इंडिया में भी अगर इस तरह से स्टैंडर्ड टाइम को सेलेक्ट नहीं किया गया तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस in our train timing, in our flight timing. So due to this, all the watches which are prepared in India, it is on the basis of the timing of Mirzapur, Uttar Pradesh. That is the Indian Standard Time. इसे हम लोग कहते हैं IST. It is Indian Standard Time. यानी मिर्ज़ापुर में 82 डिग्री ईस्ट, again I am writing 82, it will be 82 degree 30 minute east is the standard time of India। यानी मिर्ज़ापुर का जो टाइम होगा वो पूरे कंट्री का टाइम होगा। लेकिन यहाँ क्या इंटरेस्टिंग है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में चूँकि सनराइज़ पहले होती है तो वहाँ जो है सुबह 4 बजे ही सनराइज़ वहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन हमारा जो टाइमिंग है या अरुणाचल प्रदेश की जो घड़ी की टाइमिंग है वो एक्चुअली क्या होगा कि वो उत्तर प्रदेश के टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में भी मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। तो इट मीन्स कि वहाँ सनराइज़ तो बहुत पहले हो जाएगी लेकिन वहाँ का जो ऑफिस टाइमिंग है उसको आने में थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे सनराइज़ अभी स्टार्ट होना, यानी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इट विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेट्स। तो ऑलमोस्ट जो है गुजरात तक आते आते ये जो गैप है 1.5 hour का हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश वाले जो लोग हैं उनको मॉर्निंग में बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में लोग सनराइज़ के बाद तो उठ जाते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश में है उनके मॉर्निंग में उनके पास बहुत सारा टाइम है, यानी वो मॉर्निंग में बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो गुजरात वाले लोग हैं, राजस्थान वाले लोग हैं, या फिर और जो डिफरेंट स्टेट्स है विच आर इन द वेस्टर्न पार्ट,
पंजाब वाले लोग हैं, महाराष्ट्र वाले लोग हैं, तो दे विल हैव सन सेट लेटर देन अरुणाचल प्रदेश। बेचारे अरुणाचल प्रदेश वाले सनराइज के समय उन्हें टाइम मिल जाता है, लेकिन सनसेट उनकी जल्दी हो जाती है। तो उन्हें सनसेट के बाद टाइमिंग ज़्यादा किनको मिलता है, तो दोज स्टेट्स विच आर सिचुएटेड इन द वेस्ट, यानी वेस्ट वाले को लगभग 1-1.5 घंटा ज़्यादा मिल जाता है। 6 बजे जो है, 6 बजे का टाइमिंग मिर्ज़ापुर में हुआ तो क्या हुआ, ऑफिस टाइमिंग एंड हो गई। लेकिन दोज प्लेसेस विच आर सिचुएटेड इन द वेस्ट, वहाँ ऑफिस टाइमिंग के बाद भी, यानी घड़ी में तो 6 बज गया लेकिन सनसेट नहीं हुआ। तो इट मीन्स क्या है कि सनसेट नहीं हुआ तो दे आर हैविंग लॉट ऑफ टाइम। तो those people who are living in the eastern part, they will get more time in the morning, and those people who are living in the western side, they will get more time in the evening. और हमने स्टैंडर्ड टाइम को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि 0 डिग्री से 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस है। वी विल फेस डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री टू 1 डिग्री, there is a difference of 4 minutes, 0 degree to 15 degree, there will be difference of 1 hour. So in order to cope with differences and in order to have uniformity in train timing, flight timing, we have selected standard time. The standard time is the time which is followed by the whole country. It is the local time of a central meridian of a country which is situated in Uttar Pradesh. And where in Uttar Pradesh? It is a place in Mirzapur, and that place is situated near Allahabad. So I think you have understood. So if you have understood, write in the comment section, give your feedback. Okay? God bless you all.